ਪਿੰਡ ਖਾਸਪੁਰ ਵਿਖੇ ਕਿਸਾਨ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਕੈਂਪ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਕਣਕ ਤੇ ਜੋ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਨ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਪਾਤੜਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਖਾਸਪੁਰ ਵਿਖੇ ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ ਕਿਸਾਨ ਮੋਦਿਲ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਤੇ ਅੱਜ ਦਿਨ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 1 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਕੈਂਪ ਲਾਇਆ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਡਾਕਟਰ ਪੀਕੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਤੌਰ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਅਤੇ IARI ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾਕਟਰ ਗਿਆਨੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਕੈਂਪ ਦੌਰਾਨ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਮੁੱਲਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। मैं आग्रह करता हूँ गुरमीत जी से ही कि वो हमारे कार्यक्रम के अध्यक्ष बहुत धन्यवाद से आपका स्वागत करते हैं सर। सरदार सुखविंदर अंतर करो थोड़ा इधर भेज देंगे फोटो बेटा ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇ या जो परमिशन लेते हुए आपसे अनुमति। किसान वीरों सारिਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। मेरा नाम डॉक्टर दलीप कुमार गुसाई है। मैं सारे इंस्टीट्यूटां ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ सब तो पहले खासपुर पिंड च अज आए अज दे मानयोग मुख अतिथि डॉक्टर सिंह साहब, डॉक्टर ज्ञानेंद्र सिंह जी निदेशक भारती गेहूं ਅਤੇ जौ अनुसंधान संस्थान, मेरे साथी यार पिंड पद्धर ते ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਉਦਾਰ ਤਾਲੀਆਂ, क्योंकि अज तो पहले मैं कई सालों तो वेख रहा ਤੇ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਆਪਦੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਤੱਕ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੀਜ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ ਲੁਕ ਕੇ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜ ਲੈਣ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਇਹ ਆਪ ਦੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਮਾਨਯੋਗ ਡਾਕਟਰ ਗਿਆਨੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨਾਲ ਆਖਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਰਵੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬੀਜਾਂ ਲਈ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੁਰਾਈ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਫੀਡਬੈਕ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਉਣ ਤੇ ਇਹ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਰਤੀਆ ਵੀ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀ ਥੋੜੀ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ। ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ IIWBR ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੀਡ ਕੱਢੇ ਨੇ, ਕਣਕ ਦੇ ਬੀਜ जौ के भी कड्डे ने, उहदे च मेरा हथ तंग है तो मैं बोल नहीं सकता। डॉक्टर साहब की देख रेख वो बीज निकले ने ते उन्हां बीजां च सीरीज़ च अगर मैं गल करा DVW 187, DVW 222, DVW 303, DVW 327, DVW 332, DVW हुण एक छुप के इन्होंने दिता है, मैनू तो दिता कोई नहीं भाई, मैं लामा भी देता है। ਉਹਦਾ ਨਾਂ है DVW 386, ਜਿਹੜਾ TT ਕੋਲੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਖੇਤ ਨੂੰ ਝਾਤੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਰਿਹਾ ਜੇ, ਦੇਖਿਆ ਜੇ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹ ਬੀਜ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ PBW 826 ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਕਾਰਡ ਕੱਢੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਟੱਕਰ ਹੈ PBW 826 ਤੇ DVW 327 ਦੀ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਬੀਜ ਚੰਗਾ ਲੈ ਲਿਆ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ਵਸਨੀय ਸਰੋਤ ਤੋਂ, ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਤੋਂ ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ 60% ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਲਈ। ਫਿਰ ਆਪ ਦੀ ਬੈਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਆਪ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਨਗੇ
ਕਿ ਪੈਦਾਵਾਰੀ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਕਟਰ ਪੀਕੇ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਸ੍ਰੀਵਾਸਤਵਾ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਤਿਆਗੀ ਜੀ ਤੇ IIWBR ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾਕਟਰ ਗਿਆਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੂਹਿਆਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀਗੇ ਡਾਕਟਰ। ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਨਮਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆਂਗੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸੰਧੂ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਡਾਕਟਰ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਗਿਆਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੇ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਕਣਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਗੁੱਲੀ ਡੰਡੇ ਦੀ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਾਰ ਕੀੜਾ ਸਪਰੇਅ ਕਰੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣ ਤੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਪਰੇਅ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ 100% ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੰਸਥਾਨ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਤੋਂ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਰਦੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ, ਜਿਹੜੀ ਹਾਰਮੋਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਪਰੇਅ ਤੁਸੀਂ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕਰਨੀ ਹੋ ਜੀ, ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏ ਵੀ ਉਹ ਕਿੰਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਖਾਦ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਨੇ, ਗੋਦਾਮ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਹਰੇਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਗੋਦਾਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਥੈਲਾ ਸੁਪਰ ਦਾ ਖੋਲ ਕੇ 20 ਥੈਲੇ ਵਿੱਚ DAP ਦੇ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਨਾ ਮੰਗਦਾ। DAP ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿੱਲਤ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ। व्यस्त कार्यक्रम है, आज शाम को इनको फिर दोबारा पहुंचना है, लेकिन फिर भी आए तो। और बहुत ही जब से इन्होंने पदभार संभाला है, एक खास बात हमने देखी है आपकी कि बहुत ही तन्मयता के साथ और पूरी शिद्दत के साथ अपने कार्य को निभाते हैं। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि पंजाब और हरियाणा गेहूं की फसल हो या कोई दूसरी फसल हो, उसका ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇ या जो परमिशन लेते हुए आपसे अनुमति। किसान वीरों सारिਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। मेरा नाम डॉक्टर दिलीप कुमार गुसाई है। मैं सारे इंस्टीट्यूटां ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਖਾਸਪੁਰ ਪਿੰਡ 'ਚ ਅੱਜ ਆਏ ਅੱਜ ਦੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਅਤਿਥੀ ਡਾਕਟਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਡਾਕਟਰ ਗਿਆਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਨਿदेशक ਭਾਰਤੀ गेहूं ਅਤੇ ਜੌਂ ਅਨੁਸੰਧਾਨ ਸੰਸਥਾਨ, ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਯਾਰ, ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਉਦਾਰ ਤਾਲੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਆਪਦੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਤੱਕ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੀਜ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ ਲੁਕ ਕੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜ ਲੈਣ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਇਹ ਆਪ ਦੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਮਾਨਯੋਗ ਡਾਕਟਰ ਗਿਆਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨਾਲ ਆਖਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਰਵੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬੀਜਾਂ ਲਈ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੁਰਾਈ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਫੀਡਬੈਕ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਉਣ ਤੇ ਇਹ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਰਤੀਆ ਵੀ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀ ਥੋੜੀ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ। ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ IIWBR ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੀਡ ਕੱਢੇ ਨੇ, ਕਣਕ ਦੇ ਬੀਜ, ਜੌਂ ਦੇ ਵੀ ਕੱਢੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਤੰਗ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ 'ਚ ਉਹ ਬੀਜ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬੀਜਾਂ 'ਚ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਚ ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ DVW 187, DVW 222, DVW 303, DVW 327, DVW 332, DVW ਹੁਣ ਇੱਕ ਛੁਪ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਲਾਮਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ DVW 386, ਜਿਹੜਾ TT ਕੋਲੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਖੇਤ ਨੂੰ ਝਾਤੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਰਿਹਾ ਜੇ, ਵੇਖਿਆ ਜੇ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹ ਬੀਜ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ PBW 826 ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਕਾਰਡ ਕੱਢੀ ਹੈ।
ਸਾਡੀ ਟੱਕਰ ਹੈ PBW 826 ਤੇ DVW 327 ਦੀ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਬੀਜ ਚੰਗਾ ਲੈ ਲਿਆ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ਵਸਨੀय ਸਰੋਤ ਤੋਂ, ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਤੋਂ ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ 60% ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਲਈ। ਫਿਰ ਆਪ ਦੀ ਬੈਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਆਪ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਪੈਦਾਵਾਰੀ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਆਪ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਕਟਰ ਪੀਕੇ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਸ੍ਰੀਵਾਸਤਵਾ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਤਿਆਗੀ ਜੀ ਤੇ IIWBR ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾਕਟਰ ਗਿਆਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੂਹਿਆਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀਗੇ ਡਾਕਟਰ। ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਨਮਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆਂਗੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸੰਧੂ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਡਾਕਟਰ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਗਿਆਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੇ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਕਣਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਗੁੱਲੀ ਡੰਡੇ ਦੀ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਾਰ ਕੀਰਾ ਸਪਰੇਅ ਕਰੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣ ਤੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਪਰੇਅ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ 100% ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੰਸਥਾਨ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਤੋਂ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਰਦੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ, ਜਿਹੜੀ ਹਾਰਮੋਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਪਰੇਅ ਤੁਸੀਂ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕਰਨੀ ਹੋ ਜੀ, ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏ ਵੀ ਉਹ ਕਿੰਨੇ। इसमें काफ़ी अग्रणी रहते हैं और उसका नतीजा है कि जब से मैंने गेहूं की फसल ज्वाइन की है, पंजाब हरियाणा आपस IIWR ਕਰਨਾਲ ਔਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀਜ਼, ਮੇਰੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। तो मैं थोड़ा ਜਿਹਾ ਆਪਣਾ IARI और DWR ਦਾ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ HD 2960 IARI ਦੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੂਰੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਕਈ ਵਾਰ ਕਰਨਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਜਾਂ DWR ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਵੈਰਾਈਟੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਘੱਟ, ਇੱਕ 88 ਵੈਰਾਈਟੀ ਕਾਫੀ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈ ਸੀਗੀ, ਉਸ ਵੈਰਾਈਟੀ ਨੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹ ਅੱਗੇ ਦੇ ਵਿਚਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੀਗਾ ਵੀ DWR इतना बड़ा बीट द रिसर्च इंस्टीट्यूट है और जहाँ की वैरायटी तो इतनी अच्छी और बढ़िया होनी चाहिए, जैसे IARI की वैरायटी इतनी दूर तक चलती है। जोगनजीत सिंह, गुरमीत सिंह पटियाला, हरप्रीत सिंह सिरसा, परमजीत सिंह, तो हो गया। नमस्कार साथियों, गेहूं की खेती के बारे में जितना विस्तृत जानकारी आज आप लोगों को दी गई है, उसमें से कुछ बातें हम फिर से पुनरावृत्ति करना चाहते हैं, फिर से बताना चाहते हैं। सबसे पहली बात तो अभी खेत में भी ये बात हो रही थी कि जो हमारी नई किस्में आ रही हैं उनकी मार्केटिंग कैसे हो, है ना। इसके लिए अब क्योंकि ये एक बिल्कुल नया आयाम खुल गया है ना। पहले हम लोग सप्लाई के हिसाब से खेती किया करते थे, अब हमें डिमांड के हिसाब से खेती करने की आवश्यकता आ रही है।
अब तेजा सिंह जी होंगे, उनको पता है कि स्वतंत्रता के समय जो मिल जाता था वो खाते थे। आज ये छोटा बच्चा घूम रहा है, इसको भी पता है कि हमको क्या खाना है, हमारे लिए क्या अच्छा है। अभी किस्मवार गेहूं की सेल नहीं होती है, बासमती में तो ये बहुत ही कॉमन प्रैक्टिस है कि किस्मवार ही सेल होती है। एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जो कि भारत में खेती जो भी होती है वो सब प्रकृति से जुड़ी हुई खेती होती है। प्रकृति से ही संस्कृतियों का विकास हुआ है ना। जहाँ कहीं जैसी प्रकृति थी वैसी संस्कृति का विकास हुआ है। इसी में एक एग्जाम्पल आप लोग को उदाहरण के तौर पे हम बताएं, जो हमारा एक मंदिर है पुरी में, पुरी का जो मंदिर है वहाँ 365 दिन जो प्रसाद बनता है उसमें चावल का ही प्रयोग होता है, लेकिन 365 गांव से 365 अलग अलग किस्मों का चावल आता है ना। और वो किस्मवार अभी पिछले कम से कम नहीं तो सैकड़ों साल से आ रहा है, हमें तो लगता है। किस्में बदलती हैं लेकिन वो उतना चावल जितना उनको मंदिर को देना होता है। क्या हम लोग ऐसा विचार कर सकते हैं कि हम लोग भी क्लस्टर में इतना गेहूं किसी एक अपनी जो बायो फोर्टिफाइड वैरायटी है उसको हम लंगर के लिए गुरुद्वारों में किस्मवार देने की कोशिश करें। आयरन उसमें ज्यादा हो, जिंक ज्यादा हो, तो केवल रोटी न होके साथ में उसके साथ साथ कुछ पौष्टिक तत्व भी उसमें चले जाएं। तो ऐसा विचार करना चाहिए और ऐसा तब जाके हमारे ये जो क्लस्टर्स हैं ये स्ट्रांग होंगे। हमें लगता है कि इस दिशा में अब डिमांड बेस्ड जो हमें खेती करनी है कि हमें क्या उगाना है, क्या खिलाना है। मिलेट उसका बहुत अच्छा, श्री अन्न का इसीलिए प्रचार प्रसार किया गया है, बहुत अच्छा है। हम लोग प्रकृति के साथ साथ जैसे जैसे प्रकृति चेंज हो रही है वैसे वैसे दूसरे खेती चावल इसके ऊपर शिफ्ट कर गए, तो क्या हम लोग थोड़ा हिस्सा मिलेट का भी लगा सकते हैं। उसमें भी बायो फोर्टिफाइड वैरायटी निकाली जा रही है, उसमें भी जैव जिसमें कुछ न कुछ अच्छा है, किसी में कैल्शियम अच्छा है, किसी में कुछ अच्छा है। तो क्यों हम लोग ऐसी चीजों की ओर ध्यान नहीं देते हैं, ये एक सोचने की बात है। देना चाहिए। हम लोग प्रोग्रेसिव किसान हैं, हम पंजाब जो है हमेशा से खेती में अग्रणी रहा है। कुछ नए एग्जाम्पल करके दिखाने की पंजाब की ये शुरू से रहा है कि यहाँ पे कुछ नया करके दिखाते हैं, सबसे अलग सबसे बड़ा कुछ करना है। और पटियाला तो फेमस है, पटियाला पैक से लेके पटियाला हर चीज, पटियाला मतलब बड़ा कुछ। तो क्या गेहूं की खेती में, बायो फोर्टिफाइड वैरायटी में, क्लाइमेट रेजिलिएंट वैरायटी में हम लोग कुछ बड़ा करके दिखा सकते हैं। तो क्या बड़ा हो सकता है वो सोचना आप लोग का काम है। कैसे मिलजुल के किस तरीके से 4, 5, 6 बड़ी ऐसी वैरायटी। आज ड्यूरम का हमने देखा तब ये बात हमें दिमाग में आई, जो सूजी का गेहूं है, सूजी का गेहूं भी इसी तरह से बिकता है। ये सूजी के लिए जाता है, सबको पता है। ये पास्ता के लिए जाता है, ये सबको पता है। कौन कौन सा वैरायटी जो है वो जो एक्सपोर्ट में है उनको तो पता है, लेकिन उसके लिए जो पीछे जो कुछ भी जरूरत है, जहाँ पे आपको पेस्टिसाइड की क्या उसमें होना चाहिए, गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस की जो बात होती है उसको किस तरीके से लेना है, कहाँ पे उसको कैसे भंडारण करना है, कैसे उसमें कोई दवा का कितना मात्रा हो सकती है, वो सारी चीजों को देखते हुए किस तरीके से खेती को आगे बढ़ाएं कि आने वाले समय में हमारी प्रकृति को भी कोई नुकसान न हो, हमारी संस्कृति भी बनी रहे और उन सबको मिला के जितनी विकृतियां हैं खेती में उसको हम लोग दूर करते चलें। तो यही जो हमारा 20,000 साल से कृषि का सिद्धांत रहा है, कृषि विकास का भारत में, प्रकृति से संस्कृति, संस्कृतियों में विकृति आती है तो उसको दूर करने की जरूरत पड़ती है। आज किस तरीके से हमारी खाद्यान्नों में जिन तत्वों की कमी थी उसको बढ़ाने के लिए बायो फोर्टिफाइड का भी किया जा रहा है, किस तरीके से ऑर्गेनिक मैटर बढ़ाने की बात की जा रही है, प्राकृतिक खेती की बात हो रही है। हर तरीके से हम लोग पद्धति अपनी जो है, ताकि हमारे जो ये छोटे छोटे बच्चे घूम रहे हैं। तेजा सिंह का तो जमाना बीत गया। तेजा सिंह मान लो उस समय से देख रहे हैं जब प्राकृतिक खेती होती थी और आज जो है पूरी जो है खेती हो रही है जहाँ पे कि केवल फर्टिलाइजर बेस्ड है। ऑर्गेनिक कार्बन कम होता गया, कम होते होते आज 0.2, 0.3 पे आ गया, जो कि 1% अगर हो जाए तो अपने आप उपज बढ़ जाएगी, है ना। तो इन सब चीजों को देखना चाहिए। पराली की आज हम रास्ते में देखे बहुत कम, अभी भी कुछ लोग कहीं कहीं जलाते होंगे, लेकिन अब सबको पता है कि पराली से उसको हम लोग प्रबंधन करके अपना ऑर्गेनिक मैटर बढ़ा सकते हैं। अभी एक प्रश्न भी उठा था कि क्या एक बोरी यूरिया डालने से, तो बहुत अच्छा है।
पराली, साथ में पराली गल भी जा रही है। आपका 0 ड्रिल मशीनें हैं, कम से कम नहीं तो हमें लगता है 1500 करोड़, कितने की मशीनें, 1500 करोड़ की मशीनें पराली प्रबंधन के लिए पंजाब को दी गई है ना। उसका भरपूर प्रयोग हो। अगर एक जो है आपका ये हैप्पी सीडर या जो पावर सीडर है, अगर 125 से 150 एकड़ एक सीजन में कर सकता है, उसके हिसाब से कैलकुलेट कर लीजिए और ले लीजिए मशीनें। भारत सरकार उसके लिए भी पैसा देने को तैयार है। हर तरीके से ऑर्गेनिक मैटर भी बढ़ना चाहिए। ये जो पॉल्यूशन की, पराली की समस्या, वो भी खत्म होनी चाहिए। नई नई किस्मों का जो है आप यहाँ विकास हो, उसका क्लस्टर बने, उससे ज्यादा आपको इनकम मिले, आपके फार्म से लोग खरीद के ले जाएं। इस तरीके की व्यवस्था आगे आने वाले समय में हो, ये हम लोगों का विचार है। और इसी विचार के तहत हम लोग ये सर्वे भी करवा रहे हैं कि कहाँ पे कितना। आप लोगों को एक जिम्मेदारी भी दी गई है कि कुछ क्लस्टर डिमॉन्स्ट्रेशन के तौर पे दिखा दें लोगों को कि हाँ भाई ये भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। जैसे बासमती में आज खरीदार जो है वो जाते हैं गांव किसानों से मिल के कि भाई कौन सी है तुम्हारे यहाँ, उसका हम मेमोरियल चेक करा लें, उसमें कोई पेस्टिसाइड तो नहीं है, उसकी भी व्यवस्था करा दी जा रही है। दिल्ली में पूसा में एक केंद्र बना दिया जा रहा है, अगले साल से वो टेस्टिंग भी करेगा। कोई भी अपना पौध का लेके जाएगा, सैंपल जैसे चाहिए होते हैं, तो वो करके बता देंगे कि भाई आपके खेत बढ़िया, इसमें कोई पेस्टिसाइड नहीं है, कोई एमआरएल नहीं आ रहा है। तो आप जो खरीदार है उससे मोल भाव कर सकते हैं कि हमारा प्रोडक्ट तो ऑर्गेनिक जैसा है ना, तो उसकी कीमत आपको ज्यादा मिलेगी। इस तरीके की व्यवस्था, इस तरीके की मार्केटिंग करने की आवश्यकता आ रही है। और अगर वो क्लस्टर में होगी, एक एक गांव से 10,000 20,000 कुंटल अगर एक ही वैरायटी मिल जाए, जैसे कभी किसी जमाने में इसमें फलों के केस में होता है ना, प्रतापगढ़ कोई चला जाए तो आंवला जितना चाहे खरीद सकता है। कोई कहीं आम के लिए चला जाए साउथ में तो बंगनपल्ली आम, पूरे देश में बंगनपल्ली आम आ जाता है, पीला वाला जो आम है ना। तो सबके क्लस्टर है, वो लोग जानते हैं कि कहाँ से खरीदार को भी पता है कि हम वहां जाएंगे तो हमें जितना चाहेंगे मिल जाएगा। लेकिन गेहूं अभी भी वो मंडी की व्यवस्था बनी हुई है जिसको थोड़ा सा चेंज करने की जरूरत है। मंडी का पैसा देना हो, मंडी का पैसा दे दीजिए, 100-50 रुपया उसका भी जाए, कोई बात नहीं, लेकिन साथ में अपना ज्यादा से ज्यादा कीमत पे कैसे बेचा जा सकता है उसका विचार भी करना चाहिए कि हम क्या सीधे प्रोसेसर से मिल सकते हैं, उसके लिए क्या जरूरत है, कैसे क्या करना है। तो एक तो ये बात करनी थी। और दूसरा, तेजा सिंह जैसे जो वरिष्ठ किसान हैं, 80-75 साल के ऊपर, हम लोग तो यही कहते हैं कि 75 साल के ऊपर के जो भी लोग हैं उनकी भी एक जिम्मेदारी है कि अपने पूरे 75 साल के जीवन का जो निचोड़ है उसको किसी तरीके से आगे आने वाली जो पीढ़ी है उसके लिए या तो लिख के जाएं या बोल के रिकॉर्ड कर दें। क्योंकि एक इस तरीके का आदमी जब हम लोग के बीच में से जाता है तो एक पूरी डिक्शनरी जल जाती है, एक पूरी डिक्शनरी जिसको हम लोग कहते हैं गूगल का, समझ जाओ कि इतना डेटा चला गया है ना। उस डेटा को अगर हम लोग रख लें तो आज डेटा की वैल्यू है। गूगल का आज आते समय भी हम लोग देख रहे थे, गली गली का, सड़क का उसको पता है। क्या हम लोग को ऐसे लोगों से जानकारी एकत्र करने का जरूरत नहीं है? बिल्कुल जरूरत है ना, कि ऐसे लोगों से भी आपको जानकारी, वहां बैठाइए, अपने छोटे बच्चों को बैठाइए, शाम को 1 घंटा उनके साथ बैठें, वो लोग जो कुछ भी बताएं उसको लिखें। ऐसा आंध्र प्रदेश में एक कार्यक्रम किया गया था और काफी जानकारी, कई डायरी भर गई जितना की जानकारी, जिसको कि हम लोग ITK कहते हैं ना, इंडिजिनस टेक्निकल नॉलेज, परंपरागत ज्ञान। परंपरागत ज्ञान जो है वो धीरे धीरे चला जाएगा। अचार में कौन से मसाले पड़ते थे वो बताने वाला आपको आज डेट में कोई मिलेगा नहीं, अगर किसी बूढ़े से नहीं पूछेंगे तो कि कहाँ क्या है ना। तो ये सारी चीजों को, उस ज्ञान को, कैसे पहले मिलेट की खेती होती थी, कैसे श्रीअन्न की खेती होती थी, कौन सी किस्में थी, कौन सी कब खानी चाहिए, ये सारा जो है परंपरा बनी रहनी चाहिए। आगे आने वाले सब बच्चों के लिए भी ये परंपरा बनी रहे और आप सबको खेती से खूब लाभ मिले, जल्दी से जल्दी आय दुगनी तिगुनी चौगुनी हो। इसी विचार के साथ भारत सरकार भी काम कर रही है और हम लोग भी इसी दिशा में, रिसर्च डेवलपमेंट हो, चाहे जो हमारी योजनाएं हैं सभी इसी दिशा में चल रही हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप की योजना हो, FPO की योजना हो, ये सारी इसी दिशा में है। कहीं ना कहीं इसी जो हमारा प्रकृति संस्कृति और विकृति का जो चक्र है चलता है
खेती में, उसी को किसी तरह से मैनेज करने की ये सारी योजनाएं हैं और उसी के दिशा में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आप सब यहाँ जितनी संख्या में आए, हम लोग का इतना सम्मान किया, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। कमिश्नर साहब ने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी, जिससे किसानों को सीधा लाभ मिले और जो डॉक्टर पीके सिंह साहब, एग्रीकल्चर कमिश्नर भारत सरकार। सर, मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूँ क्योंकि आपने बिजी शेड्यूल में भी आपने हमें टाइम दिया। देखिए, पंजाब जो है गेहूं उत्पादन में एक अग्रणी राज्य है और हम लोग चाहते हैं कि पंजाब के माध्यम से जो बायो फोर्टिफाइड वैरायटीज़ हैं, क्लाइमेट रिजिलिएंट वैरायटीज़ हैं, जिनसे कि आने वाले समय में हम लोग अपनी जो न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी की बात हो रही है उसको दूर करने की, उसको पूरा करने की जो हमारा टारगेट है उसको किया जाए। इस कारण से आज यहाँ पर भी इस कार्यक्रम को किया गया है ताकि किसान भाइयों के बीच में ये प्रचार हो सके कि हाँ, आने वाले समय में बायो फोर्टिफाइड वैरायटीज़ हैं, क्लाइमेट रिजिलिएंट वैरायटीज़ हैं, इनका क्या महत्व होने जा रहा है और किस तरीके से उनकी खेती की जाए, इस बारे में विस्तृत जानकारी आज यहाँ पर दी गई है। कैसा रिस्पॉन्स मिला किसानों को? बहुत अच्छा रिस्पांस है। किसान जो है, ऐसा हम लोगों का तो टारगेट था कि 60% कम से कम क्लाइमेट रिजिलिएंट वैरायटी हो जाएं, लेकिन ऐसा लगता है कि कम से कम 75 से 80% जो है ये क्लाइमेट रिजिलिएंट वैरायटीज़ ही खेती में इस समय आ रही हैं। कीटनाशक दवाइयों की ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, जैसे पराली को भी बीच में आग लगा देते हैं, उससे प्रदूषण होता है, उसके बारे में क्या मैसेज है? देखिए, पराली में आग लगाना एक मजबूरी जैसा लगता था पहले कि दो फसलों के बीच में समय कम मिल रहा है, लेकिन अब उसकी व्यवस्था, नई मशीनें आ गई हैं और उसकी तकनीक का भी विकास हो गया है कि दो धान की लाइनों के बीच में आप गेहूं को हैप्पी सीडर है या और जो स्पीड इस टाइप की मशीनें आ गई हैं, उनसे बिना किसी समस्या के और बिना किसी उपज में नुकसान के उनको बो सकते हैं। तो ऐसी मशीनों को भी बहुत बड़े बृहद स्तर पर दिया जा रहा है ताकि ये समस्या धीरे धीरे समाप्त हो जाए है। और जितनी मशीनों की आवश्यकता होगी, जैसे जैसे डिमांड आएगी, जैसे जैसे हमारा कहीं कहीं कस्टम हायरिंग सेंटर बन रहे हैं, कहीं एफपीओ के माध्यम से भी मशीनें दी जा रही हैं, मशीनरी बैंक के माध्यम से भी मशीनें दी जा रही है। तो जितनी मशीनें और चाहिए होंगी, क्योंकि ऐसा देखा जा रहा है कि एक मशीन जो है 150 से 200 एकड़ से ज़्यादा नहीं कर पाता है एक सीजन में, तो उसके सापेक्ष अगर पूरे क्षेत्र को जोड़ लिया जाए और जो अग्रणी किसान है वो आगे आएँ, मशीनें लें, उसके लिए सब्सिडी की व्यवस्था की जाए। उसकी बुआई से धरती का पानी जो वाटर लेवल बहुत नीचे जा रहा है, इसके लिए भी कोई प्रबंध कर रहे हैं या कोई बदल? देखिए, धान की बुआई से धान की खेती ऐसे क्षेत्रों में जहाँ पे कि सैंडी सॉइल है या जहाँ पे पानी कम रुकता है, वहाँ पे निश्चित ही ज़्यादा पानी लगता है और वहाँ पे पानी की दिक्कत आ सकती है आने वाले समय में क्योंकि धीरे धीरे पानी गहराई में जा रहा है। तो उसके लिए हमारे पास हम लोग ने एक कोशिश की जा रही है कि डीएसआर, डायरेक्ट सीडेड राइस की व्यवस्था की जाए और कुछ एरिया जो है धान का जहाँ पे कम उपज है धान में, क्योंकि रेनफेड है, तो वहाँ पे मक्के की खेती को भी बढ़ावा दिया जाए। तो ऐसा भी प्रसार प्रसार की व्यवस्था की जा रही है कि क्योंकि इस समय मक्के का भी प्रयोग बहुत तेज़ी से बढ़ने वाला है। इथेनॉल बनाने के लिए मक्के का प्रयोग आने वाला है। तो खरीफ के में मक्का, उसके बाद फिर आपका मस्टर्ड यानी कि सरसों, और उसके बाद फिर आपका मूंग कि अगर तीनों की व्यवस्था बना लें, अगर ये फसल चक्र अपना ले आदमी, और या फिर मक्के के बाद फिर गेहूं और फिर मूंग भी कर सकते हैं। ऐसे फसल चक्र अपनाने से ऑर्गेनिक कार्बन, पानी सभी की थोड़ा सा स्थिति में सुधार होगा। सर, किसान बदलवी खेती करना चाहते हैं, जैसे बोल रहे हैं मक्की वगैरह मूंग वगैरह, पर इनको रेट सही नहीं मिलता, एमआरपी रेट नहीं मिल रहा अभी तक। इस बार तो एमएसपी पे खरीद की मक्के के लिए पूरी व्यवस्था है, क्योंकि इथेनॉल इंडस्ट्री के लिए इस बार बहुत ज़्यादा मक्के की आवश्यकता है। धान, अब चावल जो है, टूटे चावल से पहले जो इथेनॉल बन रहा था वो नहीं इस समय बन पा रहा है और मक्के से ही इस समय इथेनॉल बनाने के ऊपर काफ़ी प्रयास है। तो बहुत ज़्यादा डिमांड है इस समय मक्के की। तो इस बार एमएसपी पे आपको, एमएसपी से नीचे तो नहीं ही जाने वाला है, उससे ज़्यादा भी हो सकता है। 75 सालों में तब्दीली कितनी आगे, जो बोल रहे थे वे बुजुर्ग हैं 75 साल से खेती कर रहे हैं, कितनी आप तब्दीली आई है? पहले अच्छा धान या कणक गेहूँ होता था, अब नहीं होता, फ़र्क क्या है उसमें?
नहीं, अच्छा गेहूं की बात ही नहीं है। अच्छा गेहूं अब पहले से ज़्यादा अच्छी किस्में आ गई हैं जो कि उपज भी दे रही हैं और उसमें बायो फर्टिफाइड भी थी। पहले रोटी की क्वालिटी अच्छी हो सकती थी, ज़्यादा प्रोटीन था, बहुत कम उपज होती थी। जो भी लॉन्ग ड्यूरेशन वैरायटी हैं उसमें प्रोटीन अपने आप अच्छा थोड़ा ज़्यादा हो जाता है क्योंकि उसको समय बोल्ड दाने थे, धीरे धीरे बढ़ता था, उसमें प्रोटीन की मात्रा अच्छी होती थी, तो ग्लूटेन जिसको है ना उससे रोटी अच्छी बन जाती थी, वो एक अच्छाई थी। लेकिन उतना ही गेहूं खा के क्या हम लोग ज़्यादा न्यूट्रिशन पा सकते हैं? उतनी ही रोटी, अगर 4 रोटी कोई खाता है तो 10 तो नहीं खाएगा। 4 रोटी में ही क्या आयरन भी मिल जाए, उसको जिंक भी मिल जाए, प्रोटीन भी अच्छा मिल जाए, ऐसी किस्में अब आ गई हैं। तो हमें उपज भी ज़्यादा मिल रही है और ये भी है। तो अभी भी बहुत से लोग C306 जैसी किस्में लगाते हैं अपने रोटी खाने के लिए, लेकिन ये किस्में भी जो अब नई आ गई हैं ये उनसे अच्छी हैं और उपज भी ज़्यादा है। मैसेज क्या है आप किसानों को, सभी किसानों को मैसेज क्या है आपका? मैसेज यही है कि हमें प्रकृति से दूर हट के खेती नहीं करनी है, प्रकृति के साथ जुड़ के खेती करनी है। प्रकृति जैसे जैसे डिमांड करेगी आपको, अगर आज पानी की बचाव की बात हो रही है, कल मिट्टी मृदा की स्वास्थ्य की बात हो रही है, इन सब चीज़ों की बात हो रही है। इन सबको साथ लेके ही खेती हो सकती है। सबको अलग अलग करके कि हम गेहूँ उगा लें और पानी छोड़ दें, ऐसा नहीं हो सकता। जहाँ पे जो प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध हैं उन्हीं के हिसाब से हमें खेती करनी होगी। मेरा पिंड मीमसा जी, ਧੂਰੀ ਲਵਿਆ, तहसील ਧੂਰੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਕਰਨਾਲ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦਾ ਬਈ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਫਾਇਦਾ ਠਾਲ ਲੈਣਗੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਬੜਾ ਚਾਅ ਹੈ। ਕਰਦੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ? ਮੈਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਨੂੰ ਜੀ ਖੂਹ ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਆਪੇ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ, ਟੱਕ ਮਾਰਦੇ ਤੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਟੰਡਾਂ ਨਾਲ ਬੜਾ ਖੂਹ ਵਾਹਿਆ, ਫਿਰ ਹਲ ਨਾਲ ਲੱਕੜ ਦੇ ਹਲ ਨਾਲ ਕੱਲਾ ਖੁੱਡ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਬੜਾ ਚੌ ਚੜਿਆ ਕਿ 7 ਖੁੱਡ ਲੰਘਦੇ ਨੇ, ਇਕੱਠੇ ਹੀ 9 ਖੁੱਡ ਲੰਘਦੇ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਖੁੱਡ ਤੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਕੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਗਈ ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੀ? ਅੱਜ ਤਾਂ ਤਬਦੀਲੀ ਕਹਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਗਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਸੁਪਨੇ ਵਾਂਗੂ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਾ ਮੁੜ ਕੇ ਆਊਗਾ, ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਜ਼ਮਾਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਆਪਦਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਪਰਹੇਜ਼ ਰੱਖੋ, ਜੀਭ 'ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਪਰਹੇਜ਼ ਜੀਭ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਓਗੇ ਉਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੰਮੀ ਲਿਖਾਵੋਗੇ। ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ, ਸ਼ਹਿਰ ਜਾ ਕੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਖਾਓ, ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਖਾਓ ਰੁੱਖੀ ਮਿੱਸੀ। ਜੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਖਾਵੋਗੇ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ। ਦੁਨੀਆ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਵਰਤ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀਆਂ, ਮੱਕੀ, ਬਾਜਰਾ, ਜਵਾਰ ਹੋਰ ਵਗੈਰਾ ਸਭ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਜੀਰੀ ਤੇ ਝੋਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਇਕੱਲਾ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਬਦਲਾ ਕਿੰਨੋਂ ਆਇਆ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਸਲਾਂ? ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਬਦਲਾ ਉਹੀ ਪਾਸੇ ਹੀ ਉਲਟ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਅੱਧੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਖਾਲੀ, ਉਹ ਚੰਦ ਦੀਆਂ ਸਿਰ ਕਿਰਨਾਂ, ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ, ਉਹ ਸਿਆਲੋ ਸਿਆਲ ਬਾਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਧੀ ਫਿਰ ਬੀਜ ਦਿੰਦਾ, ਅੱਧੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ, ਬੀਜਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੱਤ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ, ਹੁਣ ਤੱਤ ਦਾ ਖਤਮ ਕਰਦੇ। ਮਿੱਟੀ ਤਾਂ ਕੈਂਸਰ ਆ ਗਿਆ ਧਰਤੀ 'ਚ, ਇੰਨੇ 'ਚ ਇੰਨਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਪੈ ਗਿਆ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਮਤਲਬ ਲਾਲ ਲਖੀਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੂਈ, ਉਹ ਲਾਲ ਲਖੀਰ 'ਚ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਜਿਉਣਾ ਤਾਂ ਇਹ ਤੋਂ ਬਚੋ, ਆਪ ਪਰਹੇਜ਼ ਰੱਖੋ। ਜਿਹੜਾ ਤੇਲ ਦਾ ਦਬਾ ਦਬ ਰੇਹੜੀਆਂ 'ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਇਹ ਕਮਲਾ ਟੱਬਰ ਲੈਣ ਲਾ ਲੈਂਦਾ, ਨਿਰੀ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੇਲ ਉਬਲਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਟੈਕ ਦਿਲ 'ਤੇ ਕਰੂਗਾ, ਲੀਵਰ ਖਰਾਬ ਕਰੂ। ਸਰਤੀਆ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਲਿਖ ਕੇ ਲੈ ਲਓ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਹੁਣ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ? ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਬੁੜਿਆਂ ਨੂੰ ਅਕਲ ਸੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਈ ਜੇ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਮਿੱਤਰ ਕੀੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਰ ਜਾਣਗੇ। ਬਾਕੀ ਧਰਤੀ ਸਰਾਫ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਬਈ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣੇ ਹੋ, ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਸਮਝਦੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ। ਅੱਜ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ? ਅੱਜ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਇਆ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦਾ ਬੇਵਸਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਕਬਾੜ ਨੂੰ ਦਿਹਾੜੀਆ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ,
ਕਵਾੜ ਕਰੇ ਵੀ ਕੀ, ਟਾਈਮ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬੀਜਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਲੰਘਦਾ, ਉਹ ਟਾਈਮ ਲੰਘਦੇ ਫਿਰ ਐਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਛੇਤੀ। ਉਹ ਕਰੇ ਵੀ ਕੀ, ਇੰਨੇ ਕਵਾੜ ਨੂੰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਜੇ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਪਰਾਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਮੇਰਾ ਬਹਿਦਾ ਇਹਦੀ ਪੰਜੀਰੀ ਬਣਾ ਖਾ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੜੀਆ, ਪਿੰਡ ਧਰਮਗੜ੍ਹ, ਤਹਿਸੀਲ ਅਮਲੋਹ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ। ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਕਣਕ ਤੇ ਜੌਂ ਸੰਸਥਾ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਰਕਬੇ 'ਤੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ DVW 187, DVW 222, DVW 303 ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ, DVW 370, DVW 371, DVW 372। ਇੰਨੀਆਂ ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਰਕਬੇ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੀਜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋਊਗਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਰਾਕੀ ਤੱਤ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਿੰਕ ਹੈ, ਲੋਹਾ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਰਾਕੀ ਤੱਤ ਨੇ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਇਹਦੀ ਜੋ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਹਤ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਿੰਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਬ੍ਰੇਨ ਹੈ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਦ ਵੀ ਲੰਮਾ ਹੁੰਦਾ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੇਲੇ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲਾਹਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਆਏ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ, ਕਰੀਮ ਕਿਸਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੀਵੇ ਨਾਲ ਦੀਵਾ ਜਗ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਹੈ ਜਾਊਗੀ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਇਨੋਵੇਟਿਵ ਫਾਰਮਰ, ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਮੋਹਦਿਲ ਸੰਧੂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਵੀਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕੰਬੋਜ। ਔਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਖਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਸਨ ਡਾਕਟਰ PK ਸਿੰਘ, ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ, ਡਾਕਟਰ ਗਿਆਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ IIWBR ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕਰਨਾਲ ਤੋਂ। ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਕੀ ਮੈਟਰ ਸੀ? ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਵੱਲ ਮੋਲਡ ਹੋਣਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ DAP ਔਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਯੂਰੀਆ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਾਇਓ ਫਰਟੀਫਾਈਡ ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ HD 3406, HD 3385, HD 3386 ਔਰ DVW 359, DVW 377 ਦੇ ਟਰਾਇਲ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਆਏ, ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦੂਰ ਦਰਾਡੇ ਤੋਂ ਆਏ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਸ ਬਾਰੇ? ਮੈਂ ਇਹੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਯੰਗ ਬਲੱਡਸ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰਸਾ ਹੈ ਖੇਤੀ ਦਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਣਾਓ, ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਨਾ ਜਾਓ ਔਰ ਖੇਤੀ ਕਰੋ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।